الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ سامعین محترم، قربانی کی آمد ہے۔ آج ذوالقعدہ شریف کی 16 تاریخ ہے، چند دن باقی ہیں۔ قربانی کی آمد ہے۔ قربانی کے متعلق ہم کچھ سوال و جواب، کچھ قربانی کے فضائل، کچھ قربانی کے متعلق ضروری باتیں عرض کرنے والے ہیں، جس سے مسلمانوں کا بھلا ہو، جس سے مسلمانوں کا فائدہ ہو، کہ قربانی کے متعلق ضروری معلومات، قربانی کے متعلق فضائل اور قربانی کے اوپر جو اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں، بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، بھینسے کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی یہ نہیں، ان اعتراضات کو بھی انشاءاللہ ہم دور کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو آج کا جو سب سے پہلا ہمارا سوال ہے، سب سے پہلی ہماری بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت کی روح سے قربانی فرض ہے، قربانی واجب ہے، قربانی سنت ہے یا نفل ہے؟ اس قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کے متعلق ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے، جو بھی قربانی کے حوالے سے شرعی حیثیت ہوگی۔ تو سامعین محترم، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ قربانی کے متعلق پہلا سوال ہی یہ بنتا ہے کہ اس قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ یاد رکھ لیجئے، ذہن میں رکھ لیجئے یہ بات کہ قربانی کی شرعی حیثیت واجب کی ہے۔ واجب آپ جانتے ہیں کہ فرض کے بعد کا جو مقام ہے، فرض کے بعد درجہ واجب کا ہے۔ واجب جو ہے یہ فرض کے قائم مقام ہے۔ جس شخص کے اندر بھی، جس بندے کے اندر بھی قربانی کی شرائط پائی جائیں تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ واجب کو چھوڑ دینے سے بندہ گنہگار ہوتا ہے، اس چیز کا کرنا لازم ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نماز کی مثال عرض کر دوں کہ نماز پڑھ رہا ہوں بندہ، اگر کوئی نماز کے اندر واجب چھوٹ جائے تو اس وجہ سے سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے۔ اگر سجدہ سہو کر لیا تو نماز درست ہے، اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز کا دوبارہ لوٹانا، دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے عرض کی، یہ ہے واجب کا درجہ۔ تو لہذا جس شخص پر بھی قربانی کی شرائط پائی جائیں اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ یہ اللہ کا اس کے سر پر قرض ہے۔ یہ قرض جب تک وہ نہیں ادا کرے گا تو یہ قرض نہیں اترے گا۔ اب چلتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کی طرف کہ قربانی کی شرعی حیثیت جو واجب کی ہے، اس کے کیا دلائل ہیں، کیا پروف ہے، کیا ثبوت ہے کہ ہم قربانی کو واجب مان لیں یا قربانی کو واجب کے درجے پر رکھیں؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس بندے کے اندر قربانی کی شرائط پائی جائیں اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اس حوالے سے میں پہلی دلیل اللہ کے قرآن سے دینے لگا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ پہلی آیات مبارکہ۔ اب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ذکر کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا،
दहू व तय्यबू बिहा अनफुसकुम, कि कुर्बानी करो और खुश दिली से करो। यानी आप सल्लम भी हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह ने पहले आयात मुबारका में भी हुक्म दिया है कि फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने रब की नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी करो और खुश दिली से करो। दूसरी हदीस मुबारका हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु बहू, कि ऐ लोगों कुर्बानी करो, इसमें भी हुक्म है। तो अजीजान गिरामी, ये एक आयत मुबारका और दो अहदीस मुबारका जिसमें हुक्म है। और ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब हुक्म होता है तो हुक्म की जो हैसियत होती है वो अमर के लिए आता है, यानी अमर जो होता है वो वजूब के लिए आता है, वाजिब हो जाता है। तो अजीजान गिरामी, जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अल्लाह ने अमर फरमाया, तो ये अमर बहैसियत वाजिब है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब अमर फरमाया, हुक्म दिया, तो ये चीज भी वाजिब है। और फिका की बड़ी मशहूर किताब, मोतबर किताब मबसूत में है कि अमर जो है ये हमेशा वजूब के लिए आता है। अमर जो है ये जनाबे वाला हुक्म को वाजिब कर देता है। तो लिहाजा इन आयात मुबारका से इस मबसूत के अंदर ही है कि हम इसकी दलील जो अमर वजूब के लिए है, दलील अल्लाह का कुरान, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब की नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। तो ये अमर है, ये हुक्म है, ये हुक्म अल्लाह ताला का वाजिब है, लिहाजा ये वाजिब के लिए लाजिम है। तो लिहाजा जब अल्लाह ने कुर्बानी करने और नमाज का हुक्म दिया, तो इस आयत मुबारका से अल्लाह का हुक्म भी वजू साबित हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी साबित हुआ। तो इससे कुर्बानी की शरई हैसियत वाजिब की जाहिर होती है, मालूम होती है। अब जरा आगे चलिए, दलील नंबर 2 देने लगा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका अर्ज करने लगा हूं दलील नंबर 2 के तौर पर कि कुर्बानी की शरई हैसियत वाजिब है। नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना लहू साअतुन वलम युबाहा फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, कि जिस बंदे के अंदर वुसअत हो, जिस बंदे को अल्लाह ने ताकत दी हो, जो बंदा साहिब निसाब हो, जो बंदा साहिब हैसियत हो, वो जानबूझकर कुर्बानी ना करे, फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी ईदगाह के अंदर आना दूर की बात, आके नमाज पढ़ना दूर की बात, जो बंदा साहिब हैसियत हो, जिसमें वुसअत हो, ताकत हो, इसके बावजूद भी वो कोई हीले बहाने करके कुर्बानी ना करे, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, कि वो हमारे मुसल्ला यानी हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। तो इस हदीस मुबारका से कुर्बानी की अहमियत वाज़े होती है कि कुर्बानी इतनी लाजिम, इतनी जरूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताकीद फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे गुलामों, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि जिसके अंदर वुसअत हो, जिसके अंदर ताकत हो, वो अगर कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए।
यानी उसने अल्लाह के नबी के हुक्म को ना माना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को गैर अहम समझा, तो इसलिए फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। इसी अहदीस के मुबारका के तहत, जैसा कि मैंने फिका की किताब मबसूत में अर्ज किया है, लिखते हैं कि साहिब मबसूत लिखते हैं, वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन वजदा साअतुन वलम युबाह फला यक़रबन्ना मुसल्लाना व इल्हाकुल वाईद ला यकूनु इल्ला बितर्किल वाजिबे। फरमाया कि इस हदीस पाक नकल करने के बाद फरमाते हैं, इसके अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है, वो हुक्म जो बंदा नहीं मानेगा उसने वाजिब को तर्क कर दिया, उसने वाजिब को छोड़ दिया। तो लिहाजा वाजिब को ना छोड़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल कीजिए, जिससे हो सकता है, हो सकते से मुराद जो साहिब हैसियत है, जो साहिब वुसाअत है, वो कुर्बानी जरूर करे। इस कुर्बानी की शरई हैसियत वाजिब है। अब जरा आगे चलते हैं कि दलील नंबर 3 के तौर पर, दलील नंबर 3 अर्ज करने लगा हूं कि कुर्बानी की शरई हैसियत क्या है। वो ये है कि जनाबे वाला कि कुर्बानी का एक वक़्त मुकर्रर है, कुर्बानी का एक टाइम मुकर्रर है कि कुर्बानी 10वीं ज़िलहज की ईद की नमाज अदा करने के बाद, जिसने भी अदा कर ली ईद की नमाज, उस वक़्त से लेकर यानी 3 दिन 10, 11, 12 की शाम तक ये कुर्बानी का वक़्त है, इसके अंदर अंदर कुर्बानी करे। लेकिन जिसने वक़्त से पहले कुर्बानी कर दी, वक़्त से पहले कुर्बानी कर दी, तो उसकी कुर्बानी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि शरीयत ने कुर्बानी और कुर्बानी का वक़्त मुकर्रर कर दिया है, वाजिब कर दिया है। कुर्बानी भी वाजिब और वक़्त के अंदर अंदर करना भी वाजिब। लिहाजा अगर ये वाजिब ना होती, ये नफिल होती या मुस्तहब अमल होता, तो फिर कुर्बानी ही करनी थी ना। तो बंदा चाहे वो ईद की नमाज अदा करने से पहले कर लेता, या जनाबे वाला 12 की शाम तक जो इसका वक़्त है उसके बाद, यानी कि वक़्त गुजरने के बाद भी कर लेता। तो यार ये नफली अमल है, मुस्तहब अमल है, करने से सवाब मिलेगा, ना करने से बंदे को कोई गुनाह नहीं या गिरफ्त या पकड़ नहीं होगी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जरा सुनिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़बहा क़ब्ल सलाति फलयज़बह शातुन मकानहा वलम यकुन ज़बहा फलयज़बह अला इस्मिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईद की नमाज से पहले ज़िबह किया तो वो उसकी जगह और बकरी ज़िबह करे। यानी जो उसने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली वो उसकी नहीं हुई, इसकी जगह वो दूसरा जानवर, बकरी की मिसाल है, दूसरा जानवर ज़िबह करे। और जिसने अभी तक ज़िबह नहीं किया, यानी ईद की नमाज हो गई, अभी तक ज़िबह नहीं किया, तो अब ज़िबह करे फ़अला इस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम उस जानवर पर लेकर उसको ज़िबह करे। तो ये जनाबे वाला मेरी तीसरी दलील थी कि अगर कुर्बानी वाजिब ना होती, कुर्बानी नफिल होती, मुस्तहब अमल होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा जानवर करने का क्यों हुक्म फरमाते कि जिसने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली उसकी नहीं हुई, वो कुर्बानी के वक़्त के अंदर अंदर दूसरा जानवर ज़िबह करे। तो इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी की अहमियत है, कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी के अंदर उस टाइम उस वक़्त के अंदर जानवर ज़िबह करना ये भी वाजिब है। तो ये 3 दलीलें मैंने मुख्तसरन अर्ज की हैं। तो अब चलते हैं कि जनाबे वाला कुर्बानी करने की शराइत क्या है, कुर्बानी की शराइत क्या है, यानी किस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। वो तो पहले थी ना कुर्बानी की शरई हैसियत,
अब शख्सियत की, बंदे की शरई हैसियत क्या है कि शरई हवाले से किस बंदे पर कुर्बानी वाजिब होती है। कि सबसे पहली कुर्बानी वाजिब होने की शर्त यह है कि बंदा मुसलमान हो। किसी काफिर पर, किसी मुर्तद पर, किसी बेईमान पर, किसी गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, वो कुर्बानी नहीं कर सकता, क्योंकि कुर्बानी शाइरिल्लाह, अल्लाह के निशानियों में से एक निशानी है। तो यहां ये बात मैं भी वाजे करता चलूं कि जिस तरह यहूदो नसारा हो गए या हिंदू हो गए, दीगर जितने भी गैर मुस्लिम मजहब हैं, इनको ऊपर कुर्बानी नहीं बनती, ये कुर्बानी नहीं कर सकते, क्योंकि कुर्बानी इस्लाम का शिआर है, कुर्बानी एक इस्लाम की पहचान है, इस्लाम की अलामत है। तो लिहाजा कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम की निशानी को, इस्लाम की पहचान को जनाबे वाला नहीं अपना सकता। जिस तरह हम मुसलमान आजान देते हैं, कोई काफिर आजान देगा तो वो उसने, यानी अजान देने से उसने इस्लाम को नहीं मान लिया, लिहाजा उसका इस्लाम में या उसका अजर सवाब में कोई हिस्सा नहीं। अगर वो नेकी करेगा तो हाँ मेरा रब मालिक है, दुनिया में तो उसको थोड़ा सा फायदा मिल सकता है, लेकिन कब्र हशर में, आखिरत में किसी गैर मुस्लिम को, किसी काफिर मुर्तद बेईमान को कोई अजर सवाब, कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो लिहाजा इसी तरह ये कादियानी जो भी हैं, ये भी काफिर हैं कुरान के हवाले से भी। क्यों कि जो खात्मे नबूवत का मुनकिर है वो काफिर है, मुर्तद है, बेईमान है, दायरा इस्लाम से खारिज है। और कुरान और हदीस के हवाले से भी ये कादियानी, मुर्तद, बेईमान, काफिर हैं। और पाकिस्तान के कानून के हवाले से भी, पाकिस्तान की कानून साज असेंबली 1973 के अंदर इनको काफिर करार दे चुकी है। तो लिहाजा ये लोग पाकिस्तान की असेंबली के कानून के मुताबिक भी काफिर, मुर्तद हैं, मिर्जाई हैं, और जनाबे वाला ये कुरान और हदीस की रूह से भी काफिर, मुर्तद, बेईमान है। ये भी याद रख लीजिए कि ये जो काफिर होता है वो नापाक होता है, वो मुर्तद होता है, बेईमान होता है, वो पलीद होता है। कोई पलीद बंदा, नापाक बंदा जो है, ना कुरान को हाथ लगा सकता है, ना कुरान को छू सकता है, ना जनाबे वाला किसी हदीस की किताब को छू सकता है, ना मस्जिद को छू सकता है, ना बैतुल्लाह शरीफ जा सकता है, ना गुंबद खजरा जा सकता है, ना बैतुल मकदस में जा सकता है, यानी किसी भी मुकद्दस चीज के को वो छू भी नहीं सकता। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, कि ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, मुशरिक नापाक है, मुशरिक नजस है, मुशरिक पलीद है, लिहाजा फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, कि इनको हुर्मत वाली मस्जिद, इज्जत वाली अल्लाह के घरों के करीब भी ना आने दो। तो जब अल्लाह ने इनको करीब भी ना आने का हुक्म फरमाया है तो ये मस्जिद को हाथ नहीं लगा सकते। मस्जिद भी शाइरिल्लाह है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, इस्लाम की पहचान है। तो कोई काफिर, मुर्तद नहीं जा सकता उसके अंदर, उसको छू भी नहीं सकता। तो इसी तरह ये कुर्बानी जो है ये भी शाइरिल्लाह है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। लिहाजा कोई काफिर, मुर्तद, बेईमान कुर्बानी भी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसने इस्लाम की सरासर खिलाफ वर्जी की, उसने इस्लाम को जनाबे वाला कानून की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी की। ये कादियानी जो है ये मसाजिद की तरह मसाजिद बनाते हैं, उसमें अजानें देते हैं, उनके अंदर जनाबे वाला इबादत करते हैं वगैरह वगैरह। ये तो मुर्तद हैं, बेईमान हैं। ये मस्जिद, इनका क्या ताल्लुक है मस्जिदों के साथ? या कुरान के वो तर्जमे लिख रहे हैं, किताबें छाप रहे हैं मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, कुरान का तो इनका वास्ता ताल्लुक ही नहीं बनता। तो ये किस वजह से ये कुरान को छू रहे हैं? और फिर हमारी अदालतें भी सुबहान अल्लाह उनको जनाब सहूलतें दे रही हैं
उनको फैसिलेट कर रही हैं कि तुम कुरान भी लिख सकते हो, तर्जमे भी लिख सकते हो, हदीसें भी लिख सकते हो। मेरे भाई जरा कुरान को समझो। तो लिहाजा कुर्बानी वाजिब होने की पहली शर्त यह है कि बंदा मुसलमान हो, गैर मुस्लिम कोई कादियानी मिर्जाई बेईमान मुर्तद ना हो। मुसलमान पर कुर्बानी की पहली शर्त है कि इस्लाम हो। दूसरी शर्त यह है कि जनाबे वाला वो बंदा इकामत हो, यानी मुकीम हो अपने घर में, अपने वतन, अपने घर में मुकीम हो, मुसाफिर ना हो। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। नंबर 3 के माले के निसाब हो, साहिब निसाब हो। साहिब निसाब कौन होता है, निसाब की क्या कितनी मिकदार है, ये भी इंशाअल्लाह हम आगे चल के अर्ज करेंगे। तो लिहाजा चौथी शर्त कुर्बानी की वाजिब होने की यह है कि वो बालिग हो, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो ये 4 शर्तें जिस बंदे के अंदर पाई जाए कि पहला मुसलमान हो, दूसरा मुकीम हो, तीसरा साहिब निसाब हो, चौथा बालिग हो, तो ये 4 शर्तें पाई जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में कुर्बानी का जो निसाब है उसके मुताल्लिक कुछ जानवरों के मुताल्लिक अर्ज करेंगे। अगर ये हमारा सिलसिला आपको पसंद आया है, हमारी बात आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।